Okay. Thank you very much, everybody, for joining us for this session. Okay, let me just first give me my brief introduction. My name is Khurram Jameel, and I am a fellow chartered accountant. I joined this profession in late 90s and was qualified in the year 2002. And for a couple of decades, I worked with Ernst& Young, where I also served as an assurance partner for about 7 years. And currently, I'm a partner in Grant Thornton, mainly looking after the audit and advisory services. So this is just my brief introduction. So now you would like to go for the question answers, or should I first give my brief agenda for the council? Khurram bhai, quickly, if you can run past your agenda so that it will actually help all of us understand. Okay, so I will actually probably I think some of you must have seen my presentation in the ICAP. तो मेरे mainly जो थे मेरे 4 key agenda points थे, लेकिन I will touch upon 2 mainly because here we are talking about mainly for the overseas fraternity. So my main point, and which was the second point in my presentation, was related to the overseas fraternity. So when I was doing some research for my presentation, so I found out that we have almost 1,500 members. They are working in international markets, which represent almost 25% of the overall community, which is definitely a very sizable portion. And but somehow I feel that the participation of our overseas members, that is not which is not that effective in the region and at the council level. And that's why I think कि आप लोगों के mostly जो concerns हैं, they remain unaddressed. So I would strongly advocate for a specific representation of our overseas members, and this could be achieved definitely by allocating minimum number of seats in the council and in the regional committees also. क्योंकि मुझे ये लगता है कि if Khurram Jameel is sitting in the region or the council, probably आसिफ जमान साहब या यासिर गाडेट या सरमद साहब, वो उस तरह मुझे अप्रोच नहीं कर सकते. But if, for instance, if Yasir Gadet is sitting in the council, so Asif Zaman and Sarmad Saab, they can definitely question him, and he will be answerable to all the overseas members. So what I feel, now the time has come that there has to be a representation from the overseas. अच्छा, जब ये discussion होता है, तो some of the members they feel that this is a quota system. So my response to them is like, probably we are following the quota system currently also, because this is just my view now, because we have 8 seats for the southern region, 5 seats for the northern region, 1 seat for Peshawar, and 1 seat for Quetta. So this is a sort of a quota system. But when we are talking about overseas members and we are talking about 1,500 members, so I don't think so कि ये भी यहाँ quota system होना चाहिए इस तरह का. This is not a quota system. Because अगर ये quota system है भी, so if we see the corporate structure, and especially in Pakistan, if we follow the CCG now, and under the CCG there are also some seats allocated for female party directors. There are certain seats for minority interest, and definitely I will not say that our overseas fraternity they represent the minority. If they are representing 25 to 30%, so they will come probably in the majority. So ये एक मेरा point था for especially for the overseas fraternity. And one my point was regarding to the transformation of the institute. So I strongly feel that now, like any other professional organization or even a multinational company, we need a very strong executive team, and which should be led by a strong CEO. And they should be responsible for all the financial and admin affairs of the institute. And rather than the council, the CEO should be answerable to the members for all the affairs of the institute for the whole year. अच्छा, अगर हम ये achieve कर लेते हैं, तो definitely the council can concentrate on
on more burning issues, and one of that issue could be, and definitely should be, to enhance the participation and the market perception of ICAP, and especially the accounting firms in the global markets, and in the Pakistan also. अच्छा, आप because आप सब लोग global markets में बैठे हुए हैं, so you would agree that accounting firms की जो representation और जो उनका perception बाहर के markets में है, वो that is different from Pakistan. Because Pakistan में we struggle, even I'm talking about the big 4 or big 6 accounting firms, or we probably struggle that the general public, they are the accounting firms are not known well to the general public, whereas globally all the professional firms, they are known as well as any other MNC which is operating in that jurisdiction. तो अगर हम इसको थोड़ा सा चेंज कर लें, क्योंकि मैं why I'm talking about accounting firms, because 95% of the students, they start their career with the accounting firm, and now if we are trying to capture the best talent in the country, so definitely the market perception should be the first step to achieve this objective. तो ये मेरे कुछ दो एजेंडा पॉइंट्स थे. सो नाउ if you want to ask any specific question, I would be really happy to answer those questions. मेरा एक क्वेश्चन ये है कि you are first time contesting for the council election, ठीक है, तो आपका पास क्या एक्सपीरियंस रहा है आईकैप के अंदर, यानी कि आप किन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहे हैं कि हम असेस करें कि पता चले कि देखिए जब वोटर है, जिस तरह हम अगर फर्ज करें डिसाइड करते हैं, तो वी मस्ट हैव समथिंग लाइक दैट कि आपने कोई कंट्रीब्यूशन आपका रहा है भी आईकैप के लिए. एक सवाल तो मेरा ये है. दूसरी बात ये है कि आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो करंट जो स्ट्रक्चर है, जो हमारा आईकैप का जो कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर है, उसके अंदर जैसे कि आपने बताया कि सीईओ और दूसरा, इसके अलावा क्या रिफॉर्म्स आप समझते हैं कि वो आनी चाहिए कि जो आईकैप एज आप काउंसिल मेंबर जाते हैं वो रिफॉर्म्स के लिए आप काम करेंगे? जी, थैंक यू वेरी मच. आई थिंक जो आपका पहला क्वेश्चन है, उसमें जो मैं आईकैप के साथ आफ्टर माय क्वालिफिकेशन एंड स्पेशली व्हेन आई बिकेम पार्टनर काफी क्लोजली एसोसिएटेड रहा हूं. और अगर currently I'm a member of the auditing standard committee. Previously I have served in the accounting standard committee, and I have also served in a couple of joint committees of ICAP and ICMAP. और थ्रू जहाँ तक टेक्निकल नॉलेज है, तो I probably in the last 10 years I have been a very regular speaker at the forum of ICAP, जहाँ मैंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और मेनली ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स पे तीनों हमारे कराची, लाहौर, इस्लामाबाद पे सेमिनार्स, एंड नाउ तो सेमिनार्स होते नहीं है, अब तो वेबिनार्स कंडक्ट किए हैं. तो ये दिस इज sort of like my technical contribution to the ICAP. And yes, you are right, I'm coming for the first time in the council. और ये तो आपका फर्स्ट हो गया. सेकेंडली जो आपने क्वेश्चन पूछा, वो probably that is the most important question. आपने सारे कैंडिडेट से भी इस पे ये क्वेश्चन किया है, एंड ऑलमोस्ट ऑल द कैंडिडेट्स दे अग्री कि हमें जो एक चेंज तो चाहिए इन काउंसिल में. डेफिनेटली जो पुरानी काउंसिल में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, और जो है, और चेंज क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम हमें हर जगह चेंज चाहिए होता है. तो काउंसिल का जो रोल मुझे लगता है, वो ज्यादा रोल जो एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल मैटर से हट के उनको जरा बॉडी पॉलिसी मेकिंग की तरफ ज्यादा जाना चाहिए. एंड वी कैन ओनली अचीव दिस कि अगर हम ये थोड़े से अपने रोल जो है इसको एक डिफरेंट एग्जीक्यूटिव टीम, जो स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव टीम लेकिन होनी चाहिए. अगर फॉर इंस्टेंस हम ये करते हैं कि सिर्फ एक सीईओ ले लेते हैं विद नो पावर्स, तो दिस विल नॉट रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स. तो इसमें, और सीईओ को तो हम वैसे एक आता है, लेकिन एक सजेशन ये भी आती है कि जो प्रेसिडेंट है, जो अभी हमारे पास है कि एक प्रेसिडेंट का टेन्योर 1 साल होता है. तो नाउ प्रॉब्ली we can also think of the tenure of the president could be 2 years, because what I feel that 1 year period is a very less period कि आपको जो भी एजेंडा होता है, वो that requires at least 2 to 3 years. लेकिन वो उसमें most probably I think legal issues थोड़े involved हो जाएंगे, और उसको तो drastic changes आनी होगी. लेकिन to start with, if we can go for an independent executive team with a strong CEO,
तो what in my view ये काफी administratively ये resolve कर सकते हैं चीजें. Thank you very much, Khurram bhai. Khurram bhai, I've got a question as well. Pehले तो personally working with you, I can vouch about your leadership skills. So that is perfectly fine. There's no doubt about it. मेरा एक question है regarding the world is talking about technology, artificial intelligence, digitalization everywhere. Accounting profession will get affected in the coming future thanks to these technologies. So how do you see these type of things? What kind of reforms, क्या चीजें जो है वो ICAP को लेकर आनी चाहिए on this particular area? Thank you very much, Yasir, for your comment first. अच्छा, मुझे थोड़ा सा इसमें ये है कि I think the accounting, you mentioned the accounting profession will be changed. I think accounting profession is already changed, and we are facing these problems in Pakistan, and definitely you will also be facing overseas. कि हमारा जो what I feel कि जो हमारा curriculum है, जो हमारा course है, that needs a complete overhaul. Now we are talking about and you are sitting overseas, probably you would know better. हम पाकिस्तान में शायद उस level पे अभी नहीं आए कि you mentioned that the other professions and other institute, they are talking about artificial intelligence, they are talking about robotics, they are talking blockchains, but somehow हमारा जो curriculum है, that is what I feel still that is more involved in the technical aspects of our I would say जो हमारी accounting skills है, और like बहुत ज़्यादा focus है on auditing standards, बहुत ज़्यादा focus है on accounting standard, taxation laws. Definitely this is important, but now we cannot ignore the technological advancement which we are going globally. और अगर हम ये नहीं करेंगे ना, I think ये अब ये नहीं है कि we can wait. I think this is the time, whoever comes in the council, whoever comes in the committees, this is the time that अगर हमने ये next 4 years में कोई drastic changes नहीं की, we will be very, I think, far behind the other professions. वो तो हम war, और this is should be at the war footing. ये हमारे पास time की luxury होगी नहीं हम लोगों को. We are losing our best talent to other professions. And हमारा goal तो as an institute ये होना चाहिए कि this institute ICAP, it was I would say the most privileged institute previously, होना भी चाहिए. तो ये हमारा टारगेट, और अदरवाइज अगर ये चीजें इसमें नहीं होंगी तो मैं इसमें एक तुमने टेक्नोलॉजी की बात की, मैं सिर्फ ऐड करूंगा कि what I feel कि हमारा जो curriculum है, जो हमारा there should be 3 areas of that curriculum or course. That 1/3 should be, we should test the technical knowledge of the candidates. 1/3 we should test the digital transformation, उसमें सारी चीजें आ जाएंगी. And 1/3 very important, we should test the marketing and soft skills of our students, because I feel कि ये हम अगर अपने आप को दूसरों से अगर कंपेयर करते हैं, यहाँ थोड़ा हम स्ट्रगल करते हैं कि ये यहाँ एक हम लोगों के technically I would say कि we are probably at the top if we compare any institute, any qualifications. But what I feel कि जो हमारी थोड़ी सी weakness है वो that is on the marketing side, and you are sitting overseas, you know that now without the communication, without the marketing skills, your technical knowledge cannot save you in for the business. Thank you very much, Khurram bhai. Shahzad Hussain has got a question. Yeah. Okay. खुरम, 2 चीजें हैं. अभी आपने बात की थी बेसिकली करिकुलम की बात की थी. मुझे ये बताएं कि क्या हमारा करिकुलम जो जिस फ्रीक्वेंसी पे अपग्रेड होता है, क्या इसे कंटिन्यूस बेसिस पे अपग्रेड होने की जरूरत नहीं है, जिस तरह से टेक्नोलॉजी और चेंजेस आ रही हैं, कि मतलब एक कंटिन्यूस प्रोसेस हो. हमारे यहाँ मोस्ट प्रोबेबली एक एक्सरसाइज होती है कुछ पीरियड के बाद कि हम करिकुलम अपडेट करते हैं. अब वो जब तक अपडेट होता है, पढ़ाई की चीजें अपडेट होती हैं, मटेरियल अपडेट होता है, जब तक हम वापस बहुत पीछे जा चुके होते हैं. नंबर 1. नंबर 2, बहुत सारी चीजों में क्या हमें स्पेशलाइजेशन की साइड देखनी चाहिए कि अगर हम डेटा एनालिटिक्स की बात कर रहे हैं या एआई की बात कर रहे हैं, उसको बेसिक चीजें चलो आप कोर्स का, फंडामेंटल कोर्स का बना सकते हो, लेकिन क्या हमें सर्टिफिकेशंस या स्पेशलाइजेशन की साइड देखने की जरूरत है?
क्योंकि देखो अल्टीमेटली जो है इस प्रोफेशन ने उस साइड पे मूव होना ही होना है। हम नहीं होंगे मूव तो कोई और वो जगह ले लेगा, हम स्पेस छोड़ेंगे तो कोई और वो स्पेस ले लेगा। हम लोगों ने इस तरह से बहुत सारे फंक्शंस, बहुत सारी एक्टिविटीज हम लोगों ने स्पेस दी है, जिसकी वजह से और लोगों ने वो जगह कैप्चर की है। सो तुम आपका इस बारे में क्या है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू, किस तरह से हम इसको आगे लेके चलने की जरूरत है? सर्टिफिकेशन हो गई या स्पेशलाइजेशन की बात हो गई, करिकुलम के अपडेशन की बात हो गई? Yeah, okay. So I think thank you very much, Shazad. I think you just mentioned कि हमारी कोई जगह ले लेगा, but I think कि जगह ले ली है उन्होंने. It's not 100%, but majority हम लोगों का जो major तो दूसरी qualifications हैं, they if we compare us like with any other qualification 10 years back, अब बहुत ही major difference है. So that's what I was mentioning before कि now कि we need to do this on a war footing. हमारे पास लग्जरी नहीं है. यू आर एब्सोल्युटली राइट कि जब हम और ये हम लोग अपना कोर्स अपडेट अगर करते हैं 2 से 3 साल बाद जाके, लेकिन यहाँ हमें थोड़ा सा देखना होगा कि आई थिंक लास्ट 2-3 इयर्स में एग्जामिनेशन कमेटी हैज डन अ वेरी वंडरफुल जॉब, व्हाट आई फील कि किया है उन्होंने और अपग्रेड हुआ है. लेकिन ये तो जो आपका कंसर्न है कि अगर ये नहीं करेंगे तो दिस इज again I think probably I am repeating myself कि this luxury we don't have this luxury now. अगर हमने नहीं किया तो probably next 4 years में हम लोग ये शायद डिस्कशन भी ना कर सक रहे हो, क्योंकि हम इतने ज्यादा अपना टैलेंट को लूज कर चुके होंगे. और जो सेकंड पार्ट है स्पेशलाइजेशन में, आई थिंक वी कैन बट ये शॉर्ट टर्म में नहीं हो सकेगा. This will be probably a long term plan, could be long term, short term में, क्योंकि अगर हमने सारी चीजें ही एक साथ स्टार्ट कर दी तो that would be a challenge. तो हमें most probably step by step हमें जाना होगा. First we have to check the governance structure, then जो अगर टेक्नोलॉजी को बिल्ट इन कर लेते हैं किसी भी तरह अपने, तो we can go for the next step and specialization, उसकी तरफ फ्यूचर में हम जा सकते हैं. ओके आसिफ इकबाल साहब, एक अच्छा ओके ओके ओके, नहीं बोले शहजाद साहब. हाँ, एक सवाल छोटा सा और है, एक ऑब्जर्वेशन है, सवाल है. खुर्रम, मैंने एक चीज देखी है, जब हम बात करते हैं टॉप टैलेंट हमारे पास नहीं आ रहा, हमारी ब्रांडिंग नहीं है, हमारी इमेज नहीं उस तरह से एनहांस हो रही है. ऑब्वियसली जब हम बहुत सारे काम नहीं कर रहे, मैं एक एग्जांपल देता हूँ. पाकिस्तान में से एक लड़की ने जो है वो ACCA में अभी उसकी पोजीशन आई है, उसको तमाम न्यूज चैनल पे, तमाम चीजों पे उसको कोट किया गया, बहुत सारी चीजें उसकी इनहांस की गई, इवन शायद PSL वगैरह में भी उसको इन्वॉल्व किया गया था. बहुत अच्छी बात है, ऑब्वियसली हमारे मुल्क की रिसोर्स है, हमारे मुल्क का नाम है, वो अपनी जगह है, लेकिन उसके साथ ब्रांडिंग हो रही थी ACC की क्वालिफिकेशन की. दूसरी तरफ अभी शायद लास्ट टाइम में, इससे पिछले अटेम्प्ट में हमारे एक लड़का है, उसके शायद 4 या 3 गोल्ड मेडल्स आए, जिसको ना किसी मीडिया हाउस में हमने कवर कराया, ना उसको हमने ICAP के किसी उस पर कोई उसकी वीडियो मैंने देखी अब तक, ना उसी कोई एनाउंसमेंट देखी मैंने. हम तो खुद जो है एज इंस्टीट्यूट अपनी प्रोडक्ट को मार्केट नहीं कर रहे. हम ये नहीं कह रहे कि हम बाहर जाके कुछ ब्रांडिंग करें, हम उसी को फोकस नहीं कर रहे हैं. तो ऑब्वियसली फिर हम किस तरह रो सकते हैं यार कि हमारी ब्रांडिंग अच्छी नहीं है, हमारी इमेज अच्छी नहीं है. इसके मार्केटिंग के बारे में, ब्रांडिंग के बारे में, इमेज बिल्डिंग के बारे में कोई कॉन्क्रीट प्लान है आप लोगों का, किस तरह इसको आप लेके चलोगे? देखो, इसका जो मेरा ख्याल है, there is only one solution. Now the accounting firms, I'm repeating, the accounting firms should be allowed to do a reasonable marketing in lines of the global practice. मुझे ये लगता है कि क्योंकि हम प्रॉपर्ली, शायद हमारा जो ऑर्डिनेंस है वो अलाउ नहीं करता अभी, लेकिन दैट ऑर्डिनेंस वाज 70 years like old, like 60s में बना था. हम अगर आप जैसे ये मैंने पहले भी अपना ये बताया था कि हमारा इमेज, मुझे क्यों लगता है कि हमारे पास नहीं है, कि वी स्ट्रगल अपार्ट फ्रॉम आवर 11,000 और 12,000 जो स्टूडेंट्स हमारे, वी इवन स्ट्रगल कि हमारी फर्म्स के नाम भी नहीं लोगों को पता होते पाकिस्तान में, नहीं इंस्टीट्यूट नाम से पता होते एज कंपेयर टू जो ग्लोबल है. ग्लोबल में हम देखते हैं, जैसे अभी आपने क्रिकेट के एग्जांपल दी, तो अगर हम क्रिकेट मैचेस ले लें, वहां पर मार्केटिंग इतनी ज्यादा हो रही होती है कि जो भी फर्म्स है वो दे आर इक्वली कंपीटिंग विद एनी अदर MNC, जिसको उसके इक्वल कंपीट कर रही होती है. तो हमारा
अगर हम सिर्फ ये अलाउ कर दें, अगर फॉर इंस्टेंस इंस्टीट्यूट अगर ये नहीं भी करता, अगर ये मार्केटिंग अलाउड हो, तो जो भी जिसने भी गोल्ड मेडल लिया है वो ही और शी ही वाज वर्किंग इन विद सम प्रोफेशनल फर्म, बट अगर वो फर्म कुछ कुछ करना भी चाहे, मार्केटिंग नहीं कर सकती अंडर अंडर द लोकल लॉज। और ये आई वाज नॉट अवेयर कि ये जो आपने बताया, बट आई थिंक इंस्टीट्यूट को ये हमें, और ये आई विल एडमिट डेफिनेटली, इसको मैं अपने एडमिट करूंगा कि मैंने अपने अपने जो एजेंडा में कोई जो एक मार्केटिंग ऑफ द इंस्टीट्यूट वो इतना सीरियसली नहीं लिया, लेकिन हमें इसकी इमेज बिल्डिंग के लिए और हमें देखना चाहिए, क्योंकि मैं आई वाज सरप्राइज्ड, आई वाज रिव्यूइंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट, वी आर सिटिंग विद 1 बिलियन सरप्लस इन द बैलेंस शीट। अब वो बिलियन सरप्लस हमें मेंबर्स को ही तो देना है, बिकॉज हमारे जो मेंबर्स हैं दे आर ओनली कंट्रीब्यूटिंग टू द इंस्टीट्यूट। अब अगर वो किसी भी फॉर्म में अगर हम ये कंट्रीब्यूट करेंगे तो मेंबर्स को ही करना चाहिए हम लोगों को, तो वो उसमें ये मार्केटिंग डेडिकेटेड डिपार्टमेंट होना चाहिए। और आई कंप्लीटली एग्री विद यू, और ये अगर ये हम नहीं कर रहे हैं तो दिस इज प्रॉब्ली, आई वुड से थोड़ा हार्श वर्ड हो जाएगा, दिस इज अ फेलियर ऑन आवर पार्ट। सही, ठीक है, थैंक यू। आसिफ भाई, आसिफ इकबाल सर। आसिफ भाई जी, थैंक यू खुर्रम फॉर जॉइनिंग। थोड़ा सा तुम्हारा लास्ट कमेंट से आई वुड स्लाइटली डिसएग्री कि मेंबर्स जो है वो ज़्यादा बर्डन बियर करते हैं, हालांकि विच इज़ नॉट द केस। स्टूडेंट्स मोस्टली बियर द बर्डन ऑफ द इंस्टीट्यूट्स फंडिंग। और उसी से कनेक्टेड हमने बात की कि जब हमारा टैलेंट लूज हो रहा है पास में, एवरीबडी नोज ड्यू टू वेरियस रीजंस एंड वी ऑल आर पार्ट ऑफ इट। तो उसमें एक बड़ा रीजन ये है कि स्टूडेंट्स जो है आर्टिकलशिप फर्म्स में नहीं कर पाते हैं, अपनी प्रेफर्ड फर्म्स में नहीं कर पाते हैं। उसका एक रास्ता आईकैप ने, इंडस्ट्री ट्रेनिंग का आईकैप ने ओपन किया, बट आई एम नॉट श्योर कि वो इंडस्ट्री ट्रेनिंग कितनी, ऑफ कोर्स एक प्रेफर्ड आर्टिकल्स फर्म्स में ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं, और फर्म्स में भी ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि बिग 3 या टॉप फर्म्स में जो है वो अब कोई भी हो, मेरा बच्चा भी होगा तो मैं भी चाहूँगा कि टॉप फर्म में जाए। तो उसको एड्रेस करने के लिए बहुत सारे लोग आर्टिकल्स ना मिलने की वजह से दे एंड अप गिविंग अप द प्रोफेशन। तो उसको, ऑफ कोर्स यू आर आल्सो इन वन ऑफ द टॉप फर्म्स, EY के बाद यू आर इन नाउ ग्रांट थॉर्नटन, तो आपको भी ये चैलेंज आता होगा कि जो है कैसे इस इशू को एड्रेस किया जाए। और दूसरा एक सवाल जो है, क्योंकि शहजाद यहाँ पर है, तो शहजाद इज आल्सो कंटेस्टिंग SRC इलेक्शंस एंड माशाल्लाह ही इज डूइंग वेल, विश हिम ऑल द बेस्ट। तो लेकिन SRC का रोल भी हमें थोड़ा सा क्रिटिकली देखना होगा कि SRC को हमें एक इवेंट मैनेजमेंट के हवाले से ही ज़्यादा सेमिनार्स या वेबिनार्स ऑर्गेनाइज करती है। इसके अलावा there could be more roles given to SRC if we want to continue with SRC. कुछ पास्ट प्रेसिडेंट्स ने तो यहाँ तक भी कहा कि SRC को खत्म हो जाना चाहिए। तो प्लीज कमेंट ऑन दीज टू इम्पोर्टेंट इश्यूज। थैंक यू। जी, थैंक यू वेरी मच आसिफ भाई। पहले तो वो आपने, आई स्टैंड करेक्टेड, आई यूज द वर्ड मेंबर्स इंस्टेड ऑफ द स्टूडेंट्स। आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली राइट। अच्छा, जो आपने आर्टिकलशिप का कहा ना, तो that is very unfortunate, and frankly speaking there is no I don't see any short term solution for this very very important issue. ये है कोई issue, इसका solution most probably in the next 2 years तो नजर नहीं आता उसका। अच्छा, इसका एक जो है, आपने ये सजेशन दिया कि बताया कि जो इंडस्ट्री प्रैक्टिस है, लेकिन वो that is not the preferred, because the training which we are getting in the professional firms, we all agree कि हमने ये ट्रेनिंग ली है वो मैचलेस है, 3 years 4 years, and if you are going in the industry, वहां आपको एक ही यूनिफॉर्मिटी से आप लोग को ट्रेनिंग मिलती है, whereas if you are working in a professional firm, you are gaining a diversified experience. तो एक मुझे अगर थोड़ा सा मैं पहले जाऊं तो मुझे ये लगता है कि I think now we are missing वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के प्रीवियसली जब मैंने ये स्टार्ट किया था, एक इंडक्शन प्रोसेस होता था आईकेएफ का थ्रू ओवरऑल। अब व्हाट आई अंडरस्टैंड, आई माइट बी रॉन्ग, कि अब
there is no induction test at institute level. अब स्टूडेंट कैन गो टू एनी इंस्टीट्यूट और वहां जाके स्टार्ट कर सकता है. तो हमें एक तो ये चीज चाहिए आई थिंक, क्योंकि हमें अपने एक लेवल भी मेंटेन रखना है अपने स्टूडेंट्स का, अपने मार्केट को देखते हुए. तो देयर हैज टू बी आई वुड से कि एक स्ट्रॉन्ग इंडक्शन प्रोसेस एट द इंस्टीट्यूट लेवल, और ये हर जगह हो रहा है, मोस्ट प्रॉब्ली हर जगह होता है. एक तो ये देखना है हमें. अब कमिंग बैक टू कि इसका सोल्यूशन, ये एक सोल्यूशन एक फोरम पे पहले भी आया था कि ये किया जा सकता है कि एट द इंस्टीट्यूट लेवल कि द फर्म्स शुड बी रिक्वायर्ड टू इंडक्ट अ मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच ईयर, और वो नंबर विल बी डिफरेंट फॉर ईच फर्म, कीपिंग इन व्यू देयर साइजेस, देयर बिजनेसेस, देयर ग्लोबल एफिलिएशन. लेकिन ये एक अगर, और दिस इज आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट द सीए बेस्ड स्टूडेंट्स, मतलब अगर दूसरे क्वालिफिकेशंस को अगर को लेना है, दे आई थिंक दे शुड बी अलाउड, लेकिन सीए बेस्ड को एक मिनिमम लेवल होना चाहिए, वो मिनिमम हर फर्म को इंडक्ट करना चाहिए. तो ये, लेकिन दिस विल प्रॉब्ली अ पार्ट, दिस विल ये जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये सॉल्यूशन नहीं आएगा हमारे पास, क्योंकि जो प्रोफेशनल फर्म्स हैं इसको, दे आर आल्सो अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर कि ये जो अब जब स्टाफ आता है हमारे पास, वो एक लिमिटेड कैपेसिटी ही होती है. लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो एसएनपीज और जो स्मॉलर फर्म्स हैं, उनका स्ट्रक्चर अगर हम थोड़ा सा आईकैप अपना रोबस्ट वो प्ले करें, तो क्योंकि वहां आपने जैसे अभी कहा कि कोई किसी की प्रेफरेंस नहीं होती, तो वी हैव टू सी कि किस तरह हम उन वहां हम लोग थोड़ी सी अपनी इनटेक है वो बढ़ा सकते हैं. तो एक तो ये चीज पूछी थी आपने, और सेकंड आपने, सॉरी आपका सेकंड पार्ट में मिस कर गया हूँ, वो आपने कुछ क्वेश्चन, रोल ऑफ एसआरसी. जी जी एसआरसी, हाँ जी, कंप्लीटली एग्री. क्योंकि मुझे तो इस वक्त लगता है कि एसआरसी का जो रोल है वो तो दिस इज ओनली फॉर द सीपीटी एक्टिविटीज, जो हम लोग जो सेमिनार करा रहे होते हैं, वेबिनार करा रहे होते हैं. अदरवाइज इफ देयर इज एनी स्पेसिफिक रोल ऑफ द एसआरसी आई एम नॉट अवेयर ऑफ. तो ये आई वुड कंप्लीटली एग्री कि जो काउंसिल के बहुत सारे मैटर्स हैं वो शायद हम अपने वो नीचे दे सकते हैं. एंड व्हाट आई अंडरस्टैंड कि जो हमारा ऑर्डिनेंस चेंज हो रहा है उसमें शायद ये कुछ चीजें हैं जो नीचे दी गई हैं. आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट 100% श्योर, लेकिन अगर ये नहीं है तो उसको एक्टिव बनाने के लिए से काउंसिल के लिए, और मैं एक अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ कि काउंसिल शुड ओनली फोकस ऑन द ब्रॉडर एरियाज, ऑन द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोफेशन ऑफ द इंस्टीट्यूट. और ये सारी चीजें हम डेफिनेटली इसको नीचे एसआरसी पे दे सकते हैं. अशरफ भाई मेरे ख्याल से चले गए. ये द क्वेश्चन अभी आप मुझे एक खुर्रम साहब एक क्वेश्चन है लास्ट, क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है. आप क्या समझते हैं कि व्हाट मेक यू डिफरेंस फ्रॉम द अदर कैंडिडेट दैट इफ आई चूज टू वोट फॉर यू, मतलब क्या ऐसी चीज है जो आप ये समझते हैं कि अट्रैक्ट करेगी वोटर्स को, हमारे जैसे वोटर्स को, कि वो आपको वोट दें, दैट मेक्स डिफरेंस डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स? देखिए मैं जो समझता हूँ, मैं हमेशा से समझता हूँ जो काउंसिल की कॉम्पोजिशन है वो इस तरह होनी चाहिए कि देयर हैज जो कॉम्पोजिशन में पार्टिसिपेशन फ्रॉम प्रोफेशनल फर्म्स, बिग फर्म्स, एसएमपीज, फ्रॉम द इंडस्ट्री, एंड फ्रॉम, अभी तो हमारे एक फिनोमेना है कि फ्रॉम द टीचिंग इंस्टीट्यूट. अभी क्योंकि हमारे पास अभी ओवरसीज फ्रेटर्निटी नहीं है, तो अब व्हाट आई फील कि जो प्रोफेशन से इनपुट आता है, तो व्हाट आई विल, क्योंकि ये दिस इज बिकॉज आई एम लिटिल बाइस्ड, आई एम वर्किंग इन अ प्रोफेशनल फर्म. व्हाट आई सी के जो प्रोफेशनल फर्म्स में जो कंट्रीब्यूशन होती है टुवर्ड्स आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट द टेक्निकल एक्सपर्ट्स होता है, वो थोड़ा सा शायद अच्छे तरीके से जो प्रोफेशनल फर्म्स के जो कैंडिडेट्स हैं वो दे सकते हैं. क्योंकि डेफिनेटली हमारे इंडस्ट्री के कैंडिडेट्स और हमारे जो टीचिंग कैंडिडेट्स हैं, दे हैव ब्रिलियंट स्किल्स इधर से. तो जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स होता है वो शायद एक प्रोफेशनल फर्म का कोई भी आता है वो दे सकते हैं. तो दैट्स व्हाई आई थिंक के जो ये एक एडेड एडवांटेज होता है. और आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द प्रोफेशनल फर्म्स, कि ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये एक एडेड एडवांटेज होता है. वैसे any session without questions from Asif Kaleem साहब is incomplete. Anything from Asif Kaleem bhai, if he is listening, available? नहीं, I think चले उनकी तरफ से सवाल है, मैं बता देता हूँ सवाल. अच्छा. जो है उनकी तरफ से सवाल जो था वो ये था कि
इस वक्त जो हमारी प्रेजेंटेशन है, जो आई कैप के मेंबर्स हैं खासतौर पे पब्लिक सेक्टर के अंदर, वो ना होने के बराबर है। तो पब्लिक सेक्टर के अंदर इंडल्ज करने के लिए आई कैप फर्टिनिटी को, इसके लिए आपका कोई ऐसा कोई है विजन है या प्लान है तो बताएं। यानी आपका क्वेश्चन ये है कि जो मेरा क्वेश्चन ये है कि है, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है पब्लिक सेक्टर में जो जॉब्स हैं, जिस तरीके से, चाहे वो वापडा हो, चाहे के इलेक्ट्रिक तो खैर प्राइवेटाइज हो गया, उसके अंदर अब बहुत सारे हमारे लोग पहुंच गए, लेकिन जो प्योर गवर्नमेंट के इदारे, एजीपी आ रहे हैं, एजी सिंध है, या गवर्नमेंट के इदारे हैं, उनमें रिप्रेजेंटेशन या हमारे लोग बहुत ना होने के बराबर। और जबकि उनका फाइनेंस डिपार्टमेंट बहुत बड़ा है और बड़े सब है, लेकिन उसके अंदर ना होने के बराबर है। और आई कैप इतने सालों से, यानी कि 1961 से इदारा बना हुआ है, लेकिन अभी तक जो उसको टैप नहीं कर सके। उसका एक रीजन तो मुझे जो व्हाट आई कैन थिंक ऑफ कि हमें जो हमारे जितने भी मेंबर्स हैं, बिकॉज स्टिल वी आर अ वेरी स्मॉल जो है कम्युनिटी, लाइक 11-12,000 पीपल, तो उनकी प्रॉब्ली जो फर्स्ट प्रेफरेंस होती है, किसी की भी फर्स्ट प्रेफरेंस होती है, वो शायद अभी हमारा जो माइंडसेट है दैट इज नॉट एट द गवर्नमेंट लेवल। तो इसमें आई थिंक इंस्टीट्यूट से ज्यादा जो है वो माइंडसेट को चेंज करने की जरूरत है कि हमारे जो जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं मेंबर, और ये यहाँ मैं सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की बात नहीं करूंगा, जितने भी प्रोफेशनल्स हैं वो शायद गवर्नमेंट उनका उस तरह का प्रेफरेंस नहीं होता जिस तरह जो है किसी प्राइवेट सेक्टर में होता है। लेकिन ये मैंने थोड़ा सा चेंज देखा है कि अभी इन द लास्ट 4-5 इयर्स में मैंने ये देखा, जो स्पेशली जो रेगुलेटर साइड है वहां उन्होंने एक अच्छी, क्योंकि देखिए एक तो चीज ये है कि ये दिस इज यू हैव टू गिव इक्वल अपॉर्चुनिटी, जहां अच्छे आपको प्रिविलेजेस मिलेंगे वहीं पर कोई भी कैंडिडेट होगा, कोई भी वो वहीं पर जाएगा, क्योंकि अदरवाइज वी ऑल आर वर्किंग फॉर आवरसेल्फ फर्स्ट, और उसके बाद हम लोग फिर सबसे पहले ये देखना होता है हमें। लेकिन इसीलिए कि अब जहां मैंने देखा है कि जो हमारे रेगुलेटर्स हैं और इस तरह की जो आपने बताया, ये मार्केट से मैच भी करते हैं चीजें, बेनिफिट्स, तो अब वहां जो प्रेजेंस है, एंड स्पेशली जो मैंने आपको 2 रेगुलेटर्स हैं, हमारे मेन रेगुलेटर्स हैं, वहां काफी इन्वॉल्वमेंट हमारे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का है वो काफी हो गया है। प्लस जो हमारे इस वक्त अगर आप देखें जो पब्लिक सेक्टर एंटिटीज है, मैंने कंपनीज हैं, वहां भी हमारी कंपोजिशन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की वो रीजनेबल साइज पे आ गई है। अगर मैं इस पे कंपेयर करूं, अराउंड 10-20 हर पब्लिक सेक्टर में शायद हमारे पास इस वक्त है। सर थैंक यू वेरी मच, और बेस्ट ऑफ लक और बेस्ट ऑफ विशेस आपके लिए। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। फर्स्ट टाइम, दिस वाज माय फर्स्ट टाइम एंड आई एम रियली ग्लैड। आप लोग तो आइकॉन्स हैं सब इंडस्ट्री के, और जो एंड इट्स रियली ऑनर फॉर मी कि आपने इतना टाइम दिया यहाँ पर। थैंक यू वेरी मच।